Hi everyone, I hope you're doing super good. So it's been almost a month that I've not connected with you all because of my health concern. And as I'm recovering, so I'm super excited to get back to YouTube and to connect with you all and help as much as I can. And as GATE 2025 is approaching and I've already discussed the importance of doing mock test in last 2-3 months. और ये वही टाइम है जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए. बट रिसेंटली सो मेनी स्टूडेंट्स अप्रोच मी कि उनको डाउट है कि मॉक टेस्ट कैसे देना है या फिर कितनी फ्रीक्वेंसी में देना है, कब कब देना चाहिए, एंड सो मेनी अदर रिलेटेड क्वेरीज फॉर विच आई थॉट दैट आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस. सो इस वीडियो के एंड तक आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू मॉक टेस्ट वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाली है. एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना सो यू कैन गिव योर बेस्ट टू द गेट 2021 एग्जामिनेशन. सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. And if this is your first video and you have not encountered about the channel, and if you like this video by end of this video, so do like the video and support me by subscribing your channel because it highly motivates me to make more content like this for you all so that you can become the best version of yourself. And now let's get back to the video. So first I will cover that why mock test is important. So I've heard so many GATE aspirants saying कि mock test देने का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि जो एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो तो IIT प्रिपेयर करती है और हम कभी कभी mock test में इतने हार्ड क्वेश्चंस दे देते हैं जो हमें स्ट्रेस देता है, and it is not important. But again this is very subjective thing. What I feel is that mock test is really vital and really important for your preparation, and I will also give you facts and reasoning as much as I can. So first thing is why you should give GATE or any other examination का mock test is, first you will get how you have to manage your time, that is time management. आपके पास 3 hours हैं, आप उस 3 hours को कैसे यूटिलाइज करना है, that is आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, एंड आई विल ऑल्सो शेयर द स्ट्रैटेजी इन द लेटर सेक्शन ऑफ द वीडियो, सो वीडियो को लास्ट तक देखना. एंड सो ये सब जो स्ट्रैटेजी है ना वो डिवाइस आप करते हो थ्रू मॉक टेस्ट. मतलब आप जब रिपीटेडली मॉक टेस्ट देते हो देन यू कैन स्ट्रैटेजाइज योर ओन अप्रोच accordingly. Also, psychological study reveals that consistent test taking at similar times as actual exam improve performance by reducing anxiety and improving time management. So this is also a point you should consider. Now the second thing is, आप जब mock test देते हो आपको अपने weak और strong topics के बारे में uncover करते हो कि आपके कौन से ऐसे topics हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा और practice की ज़रूरत है, या ऐसे कौन से topics हैं जो आपसे छूट गए हैं जो आपको दोबारा से cover करने पड़ेंगे. So ये सब चीज़ें आप जब mock test देते हो तभी आप uncover करते हो. And the third and most important thing is that you reduces stress. Now according to a neuroscience fact, repeated exposure reduce stress response and create muscle memory to exam strategies. So these were my points and reasoning कि आपको GATE या किसी भी एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट क्यों देने चाहिए. Now coming on to the second query is कि आपको ये कब देने चाहिए. मतलब ऐसे तो कभी कभी ना हमारे कॉलेज होते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम स्पेसिफिकली उन्हीं टाइम पे अपना मॉक टेस्ट दे विच आई एम गोइंग टू सजेस्ट, बट आप ट्राई कर सकते हो. एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप उसी टाइम ड्यूरेशन में अपना मॉक टेस्ट दो जो एक्चुअल जिस टाइम में गेट एग्जामिनेशन होता है, लाइक 9 to 12 और 2 to 5. You try to give mock test in these times. And now again there is a fact which I want to lay down is that cognitive performance peaks during certain times and which is actually affected by our circadian rhythm. Now what is it? It is basically our biological cycle which is influenced by so many environmental factors and also about light, like day and night. So it is our biological clock which is affected. So आपको अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे उसी टाइम पे बहुत पीक में जाने का, मतलब आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो पीक पे अगर आप कर देते हो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम जब आपका गेट में एग्जाम आप देने वाले हो, सो इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू ऑन दैट एक्चुअल डे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है. सो दैट वुड माई सजेशन कि आपको गेट का या किसी भी एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट आपको कब देना है. नाउ देयर ऑल्सो वन डाउट कि आपको कितने टाइम्स मॉक टेस्ट देना चाहिए. ऐसे तो आप कितने भी दे सकते हो, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आपको ज़्यादा नहीं देना, लाइक 15 to 20 इज़ मोर देन इनफ. अगर आप बहुत डेडिकेटेडली इनको देते हो मॉक टेस्ट को, मतलब एक्चुअल आवर्स में देते हो, 3 घंटे बैठ के देते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस देते हो, एंड कैसे देना है वो भी आई एम गोना डिस्कस इन लेटर वीडियो, तो आप वो सब फॉलो करते हो. सो आई थिंक 15 and 20 इज मोर देन इनफ. ओके, अब why I said 15 to 20 is you can keep easy mock test around 5 which will actually build your confidence. Now आप average जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आप 7 रख सकते हो which will
help you to enhance your skill or your skill development. Now you can try hard mock test around 3 to 5, which will actually help you to think out of the box and to analyze कि आप अपने जो भी mock test है उसमें क्या क्या error कर रहे हो. So that's the way you can categorize your mock test. और एक और चीज़ which I want to emphasize is कि आप कभी भी एक टेस्ट सीरीज़ एक इंस्टीट्यूशन से मत लो. मतलब आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन के टेस्ट सीरीज़ फॉलो करो. And that was my personal recommendation. Now let's move on to the most asked question, that is how actually you have to give mock test. Now I'm going to lay down few steps which you might follow and which will actually going to help you in improvising the performance of the mock test and the actual gate examination. So the first thing that you have to set up your environment. By that I mean that you have to stimulate exact exam condition, like कोई disturbance नहीं हो, सारे stationery आप वो use कर रहे हो जो आपको वहाँ पे use करना है, notepad or something. And also you have to switch off all electronic gadgets and make sure that there is no disturbance or no one is going to knock you out or no one is going to disturb you in between. So you make sure आप अपने family members को सबको बता के रखो, which I used to do, कि I am going on a mock test, so don't disturb me even for lunch, dinner or any such thing. So आपको ये सब follow करना है. Then you have to make your own time management technique and I can suggest some that आप पहले 10 मिनट में अपना क्वेश्चन पेपर पूरा स्कैन कर लो कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्जामिनेशन में. देन यू कैन डिवाइड योर टाइम स्ट्रेटेजिकली. मतलब जो ईजी क्वेश्चन है उसमें आप 40 to 50% अपना टाइम दो, जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें 30 to 40% दो, और जो हैवी क्वेश्चन है जो मतलब आपको लगता है बहुत हार्ड है तो आप उसमें अपना 10 to 20% ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर मॉक टेस्ट इज दैट हाउ डू यू एनालाइज योर मॉक टेस्ट. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एग्जाम तो दे देते हैं उसके बाद कभी भी एनालाइज नहीं करते हैं, एंड विच इज़ आई बिलीव इज़ ऑफ नो यूज़. मतलब अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो अपनी मिस्टेक्स को. सो बेसिकली देर आर टू ways by which you can analyze. The first thing is by categorizing your mistakes. मतलब आप उसको कैटेगरी में डाल सकते हो. जैसे you can write conceptual error अगर आप कोई कर रहे हो, या फिर calculation error, या फिर time management error. तो आप इन 3 sections में अपने जो भी mistake है उसमें categorize कर सकते हो. And the second way which I personally used is that I took a A4 size paper और उसमें नंबरिंग डाल दी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और उस हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट अपना जो भी एरर हुई है वो सब लिख दिया. एंड द विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो आई यूज टू एनालाइज माई क्वेश्चन माई मॉक टेस्ट लाइक दीज, कि हर क्वेश्चन के अगेंस्ट अगर वो सही होता था तो ग्रीन से मार्क कर देती थी राइट, और अगर वो रॉन्ग होता था तो आई मेड श्योर कि उसमें जो भी एरर है वो क्यों हुई है वो सब लिखती थी. एंड उसके बाद ये बात नहीं है कि आपने एनालाइज कर दिया उसके बाद खत्म हो गया, एंड ऑफ डिस्कशन. नो, यू हैव टू अगेन रिपीट कि आपके मतलब यू हैव टू एक्चुअली स्किम थ्रू कि आपकी अच्छा ये एरर हुई थी तो आप आगे जाके वो सेम मिस्टेक नहीं करो. ऑल्सो देयर आर फ्यू टिप्स विच आई वॉन्ट यू टू नो that, or you can say few mistakes which we usually make, like actually even I did. So first thing is that you don't have to be emotional by the result of your mock test. मतलब चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, आपको इससे बहुत अपने दिल पे नहीं लेके जाना है. मतलब अगर बहुत अच्छा हो गया so you don't get over confidence कि बहुत अच्छा गया अरे आई एम गोइंग टू क्रैक इट और सो, और अगर बहुत कम मार्क्स आए तो उससे ये अपने हार्ट पे नहीं लेना है कि बहुत गंदा परफॉर्मेंस गया है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड योर एक्चुअल डे का परफॉर्मेंस. द सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू कंप्लीट योर एनालिसिस विच आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग, कि अगर आप अपना मॉक टेस्ट को अलग से एनालाइज नहीं करोगे अच्छे से सो अगेन इट्स ऑफ नो यूज. एंड द थर्ड मिस्टेक विच वी यूजली डू इज दैट वी इग्नोर आवर वीक सब्जेक्ट्स. I understand by this time if you have not covered few of the topics or subjects, so it is not advised by me at least कि आप उसको दोबारा से स्टार्टिंग से प्रिपेयर करो. बट हाँ, आई कैन एडवाइज यू कि आप थोड़े से क्वेश्चंस उसके देख लो कि अच्छा इस तरीके होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस बहुत फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप कम से कम उसको अटेम्प्ट करो, वो आपसे नहीं चूक जाए. तो आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं हेल्प मिला होगा. एंड इफ येस, सो डू लाइक द वीडियो एंड सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल so I can keep up the work which I'm doing currently to help you out and to make you the best version of yourself. And with that, I wish you all the very best and see you soon in the next video. Bye.